the thing we have to leave is our, being so concrete about things, being so concrete about our thoughts, because concrete and rigidity, these are the things which will not let you bounce back in life. You have to be adaptable to situations, and you have to be, agile to a lot of things that's there. So somebody has said they are not able to hear me. Are you, am I audible to all of you? Yes. Yes, tell them in chat. Okay. So now it's time to start. I would request you to actually mute yourself, all of you. And yeah. Mute kar. We'll just mute. Yes, sir. Okay, Kshitija, I hope I'm sleeping disorder. Okay. Tulsi Ram ji ne likha hai sleeping disorder. We'll talk about that if possible. राइट किसी ने अपना ओप्पो का फोन से यहाँ पे लॉग इन किया. इफ यू कैन चेंज योर नेम, मेरे लिए क्या इजी हो जाता है दैट आई कैन एक्चुअली टॉक टू यू विथ योर नेम. एंड आप में से जितने लोग, हाय आकांक्षा, गुड टू सी यू. सो आप में से जितने लोग ऑनलाइन रह सकते हैं, अपने वीडियो को ऑन करके प्लीज रहिए, बिकॉज कई बार मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ब्लैंक वॉल के साथ बात करना विद दैट मच ऑफ बिगर एंड जेस्ट. तो आई व्हेन आई सी लाइव पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन गेट योर रिएक्शन, दैट मेक्स मी अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं बहुत स्पॉन्टेनियस बात करती हूँ. तो मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग रहे मेरे साथ एंड आप लोग बात करें. एंड ऑल्सो प्लीज कीप अ नोटबुक एंड पेन रेडी विथ यू, बिकॉज बहुत सारी बातें हमको सुनने में इजी लगता है, लेकिन बाद में हम वो चीज भूल जाते हैं. सो प्लीज कीप दैट हैंडी विथ यू. इज इट ऑन द रिकॉर्डिंग मोड? Okay. So we also have Facebook Live audience with us. Welcome Facebook Live audience. Simultaneously, I'm talking on Facebook Live right now, and I'm also talking on Zoom. So kabhi Facebook Live audience, my face will be not towards you. मेरी नजरें शायद आप लोगों की तरफ ना रहे, because there are two different devices I'm handling right now. So, but I am there with you. So please be with me. This is a very important and crucial topic that we are going to talk about today. Before we go ahead with the topic, I would like to tell you in gist, because there are few people who are new, and I'm so happy that we have a constant, every time we have this audience, constant audience who are always there every Saturday, and I'm so happy उसमें से कुछ लोग 15 मिनट 20 मिनट पहले लॉगिन करके आ जाते हैं. So that gives me really great motivation to develop these kind of topics, which is the real topics of life every time. So I'm Anindita Garg, parenting coach and counselor. Till now I have influenced and contributed to more than 50,000 people's life. I have got an experience for professional experience of 21 plus years, and transformational coaching में मेरा 11 plus years का experience है. I've been training in many other countries and also in cities of India, and I have got to learn multiple intelligence directly from Dr. Howard Gardner, who is the father of multiple intelligence, जिन्होंने multiple intelligence discover किया. And I also got a chance to do my executive MBA from ISB, and I'm also a Pumba student. That is, I've done my MBA from Pune University also. And Mindware is not only about me. I'm one of the directors, founder, member, and director. I take care of the training part, but there are 4 pillars of Mindware who are the directors. Shan Garg is another founder director. He takes care of the IT part and the business part of Mindware. Mr. S.R. Swami, who was the ex-CEO of Bharat Forge Kalyani division, he is also one of the directors. He takes care of the transformational coaching. He coaches me also a lot of time. He is the person who is the live example of how to go beyond your body and think, and how to, be unstoppable in life. At the age of 63, 65, he took up his fitness regime, and after that he has completed more than 42 full marathons. I don't know how many half marathons, and 20,000 plus kilometers of cycling. He has done Everest Base Camp, all this after the age of 65. He's 74 right now, and still he is going stronger than before.
We also have as our director Mr. Dilip Bonde. He is an ardent researcher. Whatever you see here is a result of the kind of research that he puts, and he trains me into that. I always have a conversation with him before I go for any kind of session like this. And he is also having a huge experience of more than 35 years into IT field. He was a VP of Capgemini and also Satyam and KPIT. So we are fortunate to have these kind of people to guide us in Mindware. And Mindware is into training, counseling, into we have a lot of modules for schools in digital citizenship. We have a lot of module for parenting, teens and kids. हमारे बहुत सारे parenting sessions and workshop के participants right now यहाँ पे हमारे साथ आज मौजूद है. We also do a lot of work with the companies and employees. Now, coming back to the main topic today. So there are 4 chats. अभी इसके बाद शायद मैं आपके chats को ना देख पाऊँ. Nadia said that I am unable to hear you. Not able to hear. Okay. Hello. Am I audible to other people? Akanksha. Okay. So Nadia, I think you can restart yourself. your you know your आपके जो डिवाइस है उसको एक बार रीस्टार्ट करके देखिए. Then I think you will be able to do that, right? Other people are able to hear, so मेरे तरफ से शायद प्रॉब्लम नहीं है. आप प्लीज रीस्टार्ट करके जल्दी से लॉग इन कीजिए. आई डोंट वांट यू टू मिस दिस क्रूशियल क्वेश्चन. हम लोग थोड़े अलग क्वेश्चन पे अभी बात करने वाले हैं. राइट नाउ, अभी आप लोगों को जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज गेट इन्वॉल्व विद द चैट्स, बिकॉज एक चैट ही है जिससे मुझे ऑनलाइन में पता चलता रहता है कि आप लोग कितना सुन रहे हैं और कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी क्रूशियल क्वेश्चंस. इसमें आप मुझे चैट में आंसर दीजिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. तो आपके घर में जब गेस्ट आते हैं, आई नो लॉकडाउन में गेस्ट आने का ट्रेडिशन ही बंद हो गया है. काफी सारे लोगों को याद ही नहीं है कि घर में गेस्ट आने का माहौल क्या होता है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट दोज नॉर्मल डेज जब घर पे गेस्ट आते थे और हम लोगों के घर में जाया करते थे. तो आपके घर में जब गेस्ट आते हैं या आएंगे आगे, तो आपके बच्चों से नाम पूछने के बाद द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दे आस्क द नेम क्या पूछते हैं? जनरली वो क्या पूछते हैं? So please write quickly on the chat. I want to see your involvement. Akshada is saying how your studies are going. आप कौन से क्लास में हो? राजश्री रॉयजा पूछ रही है. Yeah. And which class? Yes. Which school are you going? How are you? What do you do? Class. Yes, absolutely. 90% time. आपका नाम क्या है बेटा? आप एज भी नहीं पूछते. आपके नाम क्या है बेटा के बाद सीधा पूछते आप कौन से स्कूल में हो और कौन से क्लास में हो. इट इज सो मच प्रेडिक्टेबल. इट इज सो वेरी मच प्रेडिक्टेबल. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट आप एज अ पेरेंट्स या लोग जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं तो पेरेंट्स जो है वो टीचर्स को क्या पूछते हैं? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जनरली टीचर्स को पेरेंट्स ज्यादातर समय कॉमनली क्या पूछते हैं? So let me see the chat. How is the child? How is my child doing? So what do you really mean by how is my child doing? What do we really mean by that? We mean कि how is my child doing academically? Isn't it so? Right? Is he studying? Yes. So how is my child doing? Overall में ज्यादातर समय हमारे आंसर क्या कान क्या तरसते हैं क्या सुनने के लिए? He is a disciplined child, nice boy. वो सब हो जाने के बाद एकेडमिकली कैसा कर रहा है बच्चा? बिकॉज उसी के लिए हमने उसको भेजा है वहां पे. स्टडीज, बिहेवियर एंड मार्क्स. एब्सोल्युटली एग्जैक्टली राइट आकांक्षा. ओके. The third is that what do you ask your friends and relatives about their kids? जब आप दोस्त मिलके बात करते हो, रिश्तेदारों से आपकी बात होती है, तो उनके बच्चे के बारे में क्या पूछते हो? What you are really interested in? Are you really interested in knowing that are their kids happy or not? सच्ची में हम लोग पूछते हैं क्या ये सवाल कि आपका बच्चा खुश है कि नहीं, क्या कर रहा है, क्या हॉबीज है? या ज्यादातर समय मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जो इम्प्रॉम्प्टू आता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन इम्प्रॉम्प्टू आता है बच्चे के बारे में, वो ज्यादातर समय लेट्स बी रियली ऑनेस्ट अबाउट दिस थिंग्स, राइट? सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी
ओके, स्टडीज एंड स्कूल के बारे में पूछते हैं. यस शैला, यू आर एब्सोल्युटली राइट. उनसे भी हम यही पूछते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन कहाँ कराया, अच्छा आगे चल के क्या कौन से करियर ऑप्शन लेने वाला है वो, अच्छा उसको कौन से यू नो व्हाट इज द लास्ट इसमें उसका कैसा परफॉर्मेंस था, प्रीलिम्स में उसने कैसा किया, एंड उसको क्या लेने हैं सब्जेक्ट्स में, कौन से सब्जेक्ट्स ओमिट करना है. सो दिस इज वी आस्क अबाउट द किड, right? Majorly we ask these things about the kids, isn't it? So how much percentage? Yes, absolutely Kshitija. Percentage कितना स्कोर किया? Okay. So भाईमान सिंह ने बहुत कुछ तो भी अच्छा लिखा है, पर वो गुजराती में लिखा है तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ. नहीं, I think that's written in Punjabi, right? So मैं पंजाबी समझ सकती हूँ सर, बिकॉज मैं हरियाणा की बहू हूँ, पर पंजाबी पढ़ नहीं सकती, तो शायद मैं आपसे जब बात करूंगी तो मैं आपकी बात जरूर समझ लूंगी. What are you doing in studies and what are you, and it's so lovely that people from all over India is attending this session. It's lovely to see that. Okay, now comes the fourth question. Name a subject. This is a very crucial question. Now listen to this very carefully. एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में हमें बताया जो स्कूल में आज के दिन में पढ़ाया जा रहा है और वो हमारे बच्चों को सोचना सिखाती है, सोचना सिखाती है. एनी करिकुलम अबाउट हाउ टू थिंक. सो कैन यू प्लीज टेल मी द सब्जेक्ट्स जो सोचना सिखाती है बच्चों को. दिस इज अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बाय द वे. क्राफ्ट. ओके राजश्री मैम, क्राफ्ट में भी आजकल सोच से ज्यादा व्हाट इज रिक्वायर्ड वो पहले से बता दिया जाता है कि व्हाट यू नीड टू यू नो मेक. एंड हायर स्कूल में तो यू नो हायर स्कूल जब बच्चा चला जाता है 7th 8th 9th 10th क्राफ्ट होती नहीं है, या क्राफ्ट बंद कर दिया जाता है, या उसको फ्री पीरियड या स्टडी पीरियड डिक्लेयर कर दिया जा रहा है आजकल ज्यादातर स्कूल में. Can't really think of any. Personal development. अक्षत, पर्सनल डेवलपमेंट का कोई क्लास होता है क्या स्कूल में? I want to ask you is that is there any subject जो सोचना सिखाती है? I'm talking about school, Kshitija. I'm not talking about colleges and all. By the way, psychology में भी सोचना नहीं सिखाते, पढ़ाया जाता है सोच के बारे में, right? Physical education. फिजिकल एजुकेशन इज अ ब्यूटीफुल वे, बट उसमें भी ड्रिल्स वगैरह और मार्क्स वगैरह पे भी आज ध्यान दिया जाता है. रोमा, अदर एक्टिविटीज देन स्टडीज. सो लाइफ स्किल्स, नो सब्जेक्ट एज सच. मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि जो साइंस है, साइंस में हमको लॉजिकल थिंकिंग सिखाया जाता है. सैडली इट इज नॉट सो. We are the kids are asked to actually learn the definition, even learn how photosynthesis happens. कोई स्कूल hardly यहाँ पे है, there are very few schools जो really जाके photosynthesis कैसे होता है वो दिखाते हैं. I'm just giving you an example. If we think that maths makes us think, no, not so. मैथ्स में अगर एक स्टेप भी बच्चा अपने हिसाब से मिस करना चाहता है, स्किप करना चाहता है, या कुछ और तरीके से करके दिखाना चाहता है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्कूल एंड द बोर्ड. दे वांट देम टू फॉलो एग्जैक्टली द सेम स्टेप्स. वी से दैट इंग्लिश लिटरेचर, एसे राइटिंग, या फिर कॉम्पोजिशन या इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स कैन बी क्रिएटिव इनफ. I was so sad to see that my son's marks were cut because he did not write the exact word that was written by his teacher on, you know, in the on the board and what he copied on the notebook. So एक वर्ड के 2-3 मीनिंग्स होते हैं, उसने उसका जो सिनोनिम लिखा उसके वजह से उसके मार्क्स काटे गए, because it is expected exactly what is written by the teacher or on the book you have to वो छाप के आ जाओ. It's a sad part of it, right? So really speaking, हमारे स्कूल में सोच के बारे में अलग से कोई क्लास नहीं हो रही है ना. मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगी. एंड देन देयर इज क्विकली अनदर क्वेश्चन इज देयर, दैट इज व्हाट इज द फोर्थ हाईएस्ट सर्च क्वेश्चन इन गूगल. गूगल में फोर्थ हाईएस्ट सर्च क्वेश्चन क्या होता है, राइट? सो उसमें हाईएस्ट सर्च क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, इज हाउ टू डू अ गुड पेरेंटिंग. नाउ ये क्वेश्चन आप पाक करके रखिए. अभी आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन तो आपने सुना क्या हो रहा है. अब आप मुझे बताइए कि व्हाट, आप मुझे, अगर मैं आपको एक या दो वर्ड में बोलूं, एक वर्ड में, you cannot write a sentence. Now listen to this very carefully. You cannot write a sentence. आपको अगर एक वर्ड में बताना है that what do you want your child to be,
as a human being, not as a career option. What you want your child to be as a human being when he grows up? What will be your answer? And this is a very crucial question. 51 participants are there right now. I really want around 50 answers to it. Because this is, I'm asking to each one of you. You are attending these sessions because you are dedicated and committed to bring a difference in your child's life. Let's not be only a silent observer. Let's participate. I am interested to know what you think about your child's life. I'm interested to know your answers. So what do you want your child be in one word? As a human being when he grows up, humble, happy and healthy, happy in life, happy and joyful person, make her happy, successful. Prayusha saying honest and humble, calm, okay, mentally and physically fit. Great. Honest and humble, good. कीर्ति जी, गुड का मतलब क्या है? गुड तो किसी का गुड किसी का बैड होता है, किसी का बैड किसी का गुड होता है, right? So you have to define that more properly. Satisfied and happy, successful, humble, helpful, happy. Okay, great to see that so many people are listening to me now actively, because I want this 1 hour is for you. Let's be completely focused and involved. हम बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते. Let's see how difficult or how easy for us it is to focus for 1 hour in one session. Because the more you are involved with me, I can guarantee you कि आज आप value जरूर लेके जाएंगे. Very satisfied. Okay, Kirti said good by nature. That really explains me. That's very nice. Very nice. Okay. So great. I'm so happy that so many people have responded to my question like this. Now, आप एक बात बताइए कि आपने जो बच्चों के बारे में स्कूल में देखा, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, now tell me what is the subject that is directly teaching your child into being whatever you have declared right now. आपके बच्चे को जो आप बनाना चाहते हैं उसको डायरेक्टली एड्रेस करे, ऐसा कोई सब्जेक्ट के बारे में आप मुझे बताइए कि हाँ, ये सब्जेक्ट से ना मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, हैप्पी, अंडरस्टैंडिंग, हेल्पफुल, हम्बल, सेटिस्फाइड हो जाएगा. या राइट क्षितिजा एंड शैला जी, देयर इज नो सब्जेक्ट राइट नाउ. बट अगर आप हमारा दिनचर्या देखेंगे तो हमारा दिनचर्या क्या है? हमारा दिनचर्या ये है कि हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, बच्चे को उठाते हैं, सुबह 8 बजे उसको किसी तरीके से उठा के उसको स्कूल के लिए तैयार करते हैं. आई एम टॉकिंग अगेन अबाउट द नॉर्मल डेज. Right now also the online school has started, so they have to get ready, they have to really quickly brush. अरे जल्दी करो तुम्हारा क्लास शुरू होने वाला है, all those things. बच्चा सुबह सुबह स्कूल जाता है, वहां पे वो क्या करता है सारा दिन? पढ़ाई 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 पढ़ाई. Kshitija, we'll take the question after some times. Just park your question and write down your question. I will get back to you. Right? So सुबह 8 बजे से हमारी बातचीत चालू हो जाती है, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, पढ़ाई करो. उसके बाद वो स्कूल में 5 घंटा पढ़ाई को देता है. पढ़ाई से आने के बाद वो किसी तरीके से अपना लंच करके कहाँ जाता है? ट्यूशन में. ट्यूशन में वो क्या करता है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. उसके बाद वो किसी तरीके से घर आता है, थोड़ा उसको खेलने का टाइम मिलता है, 1 घंटा मुश्किल से. उसके बाद ही स्टार्ट्स हिज होमवर्क. होमवर्क में भी वो क्या करता है? पढ़ाई 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 एंड पढ़ाई. उसके बाद उसके पापा जब घर आते हैं या मम्मी ने सारा दिन के बाद जब उनसे बात करने की कोशिश की, तो पापा और मम्मी ने सबसे पहले क्या पूछा? आज तुम्हारे मार्क्स आए कि नहीं, या आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा, या आपका जो टेस्ट होने वाला था वो कैसा रहा, तूने होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं. ज्यादातर समय क्वेश्चन यही होता है. ट्यूशन में क्या हुआ, टीचर ने क्या बोला. राइट. सो सुबह 8 बजे से लेके रात के 8-9, उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे वो खाना खाता है, थक जाता है और सो जाता है. दिस इज रेगुलरली हैपनिंग विद अ चाइल्ड फॉर 15 to 18 years of his life. Regularly this is happening. Sometimes the study hours are increasing. It is जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके स्टडी आवर बढ़ता रहता है, उसका स्टडी आवर कम नहीं होता है. Now my question too is that कि अगर दिन में ज्यादातर समय हम यही बात कर रहे हैं एकेडमिक्स में बच्चे ने क्या किया, और हमें चाहिए बच्चा हम्बल और सक्सेसफुल और हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट, बट उस फील्ड में हमने क्या काम किया सुबह से लेके रात तक? तो that is a result of the disturbance that is in India right now
where we are talking about Sushant Singh Rajput, a brilliant student and extraordinary with extraordinary marks. He was a topper in Olympiad physics, and he was in Delhi College of Engineering. He was among the 7th and brilliant student, but nobody talked to them about life. And I'm not talking only about Sushant Singh Rajput. I have got my today's data out here. I generally don't read this kind of data, but मुझे ऐसा लगता है कि कब तक हम लोग सच से भागते रहेंगे. I'm discussing this data with you, which is the real data of last 4 to 5 days. 16-year-old girl commits suicide due to not giving mom did not give him her mobile or computer to attend online class. In a span of 24 hours, in the last span of 24 hours, 2 teens, 15-year-old girl and 16-year-old boy have committed suicide. 3 college girls suicided after the poor marks in the college. June 13 का news है ये. 2 more deaths caused due to Sushant's death. They said that if Sushant can give up, we can give up too. 17-year-old girl again committed suicide. A 13-year-old boy commits suicide in Pune because mom said that you cannot watch TV so much. This is disturbing. This is devastating. I do not really declare or discuss this kind of statistics, but today it was necessary for me. This is an eye-opener that it is not happening to one star. It is happening around us. कुछ घर छोड़ के, कुछ मकान छोड़ के, हमारे एरिया में, हमारे आसपास ये चीज हो रही है. मैं ये चीज आपसे बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज हम लोग जब ये बात करते हैं कि कोरोना वायरस हमारे आसपास है एंड हम डर जाते हैं, ये भी एक वायरस है जो हमारे आसपास है और कब हमारे घर तक पहुंचेगा हमें पता ही नहीं चलेगा. अगर हम उससे अछूते रहे और अनजान रहे, then we know the effect of it, and we are not taking precautions as we are taking precautions for the coronavirus. So really it is really devastating to go through this kind of news, but this is an eye opener that let's teach our kids and the teens how to bounce back in life. This is the call of the hour, जहाँ पे हम लोग पढ़ाई की बात सुबह से लेके शाम तक कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ना सिखा रहे हैं, हिस्ट्री क्रिएट करना नहीं सिखा रहे हैं. उनका नाम कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू रियली हैव रेजिलियंस, इन सब के बारे में सारा दिन में कब बात होती है आप मुझे बताएं. आपके डेली शेड्यूल में लाइफ के बारे में कौन बात कर रहा है? बच्चे स्कूल में फैंटास्टिक स्कोर कर रहे हैं एंड स्कूल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेट मी टेल यू, एंड स्कूल आर देयर फॉर दैट. वी आर पेइंग द स्कूल फॉर द करिकुलम्स एंड यू नो एकेडमिक्स. अगर स्कूल उससे ज्यादा भटकते तो ये पेरेंट्स ही है जो उनको जाके फिर से सवाल करते रहते हैं. सो उनकी कोई गलती भी नहीं है. They have to perform again according to the parents' expectation. What I want to ask you is that where is the child getting trained about life? क्योंकि पहले 20 साल तो स्कूल में जो एग्जाम होंगे सिर्फ वही एग्जाम बच्चों को देना पड़ेगा. 20 साल के बाद जब बच्चा लाइफ में उतरेगा तो लाइफ के टेस्ट देने के लिए बच्चा तैयार होता है क्या? Are we preparing our child, our kids to give test about life? Because the first 20 years of your life, the life doesn't test you. It start testing you after your 20 years of life. And are we preparing our child for that? Are we really sure enough कि उसके हर कदम पे हम उसके साथ रहेंगे, उसका हैंड होल्ड करेंगे, उसको बताते रहेंगे कि बेटा ये कर, ये मत कर, ये सही है, ये गलत है. तो प्रिपरेशन कहाँ हो रही है, कोचिंग कहाँ हो रही है, टॉक्स कहाँ हो रहे हैं? And again, we are so busy in our own schedules because it is really taxing. I understand the parents are overloaded with their work, with their concerns, with their business and with their job. So communication घर में कम होने लगा है. So are we doing something towards it? Because कुछ ना करके तो ये problems का solution नहीं होने वाला. It is the dire situation right now. आज आप जो parents यहाँ पे आए हुए हैं, It's you are not only the people जिनके घर के बारे में मैं बात कर रही हूँ. मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आज का जो टॉपिक है वो कम से कम 4 लोगों से डिस्कस कीजिए. आपको नहीं पता कि आपके डिस्कशन के वजह से किसके घर में क्या फायदा हो सकता है. कौन एक ऐसा बच्चा है जो ऐसा इस तरह का एक स्टूपिड सोच छोड़ सकता है, राइट? कौन वो पेरेंट्स है जो जिसको वो दिख जाए कि माय चाइल्ड इज गोइंग थ्रू समथिंग व्हिच आई हैव टू स्टॉप राइट नाउ. आई हैव टू गिव द सपोर्ट टू माय चाइल्ड. So the concern about today's kids and teens majorly is the teens are getting into a lot of arguments.
there is a lot of arrogance, confidence है बच्चों में, because they are flooded with information. आज के जमाने में information explosion है, and because of that they are having very easy access to a lot of information. बच्चों के पास जो information है जो कई बार हमारे पास नहीं होती है, but that information is also giving them confidence. But confidence के साथ we are seeing कि they are getting into a lot of arrogance, जिसके वजह से you don't try to teach me ऐसा वाला attitude भी बच्चों में देखा गया है. Confidence with arrogance can create problems. Confidence with humbleness can create a different nation altogether today, right? So are kids going towards confidence with arrogance, or they are going towards confidence with humbleness? हमको वो ध्यान देना पड़ेगा. Another concern is that there is so much of anger, अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, because घर में जब सारा दिन में ना हमारे खुद के लिए हम टाइम ही नहीं निकल पा रहे. जल्दी जल्दी में उठते हैं, भाग भाग के काम करते हैं, जल्दी जल्दी में घर आते हैं, भाग भाग के सो जाते हैं. सो ब्रेन में बहुत सारा फ्लिकर्स होता है. द न्यूरॉन्स आर नॉट गेटिंग टाइम टू स्टेबलाइज. द बिगिनिंग 1 hour of your day has to be dedicated to stabilize yourself first. मतलब आप अगर उठ के ही बच्चे को भगाने लगे, अगर उठ के आप खुद भी भागने लगे हो, there will be negative flickers in your brain, because आपके ब्रेन में आपने ब्रेन को चार्ज नहीं किया, आपने ब्रेन को स्टेबलाइज नहीं किया. so that is one of the major cause of anger. Another cause of anger is that communication जितने बार कम होता है उतने बार बच्चा जो है वो कुछ चीजें एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, अपने अंदर दबा लेता है, जिसके वजह से there is a lot of anger that is there. And of course today's kids are preferring to stay alone. मुझे अकेले छोड़ दो, मेरे रूम में कोई नहीं आना चाहिए. और उस लोनलीनेस में वो एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है जहां पे उसके हजारों दोस्त है, बट वो दोस्त रियलिटी में उसको नहीं मिलते. दे आर फेसलेस पीपल अ लॉट ऑफ टाइम. सो वी डोंट नो व्हाट माय चाइल्ड इज फेसिंग थ्रू दिस वर्चुअल लाइफ. देयर इज अ लॉट ऑफ साइबर बुलिंग दैट इज हैपनिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ हेट स्पीच दैट इज बीइंग स्प्रेड. सो ये जो वर्ल्ड है उसमें वो शुरुआत तो इसलिए करते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड से उनको लाइक्स मिलना शुरू होता है, उनको अच्छे कमेंट्स मिलने शुरू होते हैं, उनके दोस्त बनने शुरू होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ उनकी बात शुरू होती है. बट देयर इज अदर साइड ऑफ दिस वर्ल्ड आल्सो जहां पे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको ट्रोल करते हैं, उनको हेट स्पीच भेजते हैं, वो कितने नालायक है उनके वीडियोस के नीचे लिखते हैं. दीज आर ऑल फेसलेस बुलिंग दैट हैपेंस टू देम. दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू अ लॉट ऑफ हैजर्ड्स व्हिच इज नॉट इनटू देयर सिक्योरिटी जोन. वो अपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिसके वजह से a lot of kids are blackmailed. There is a lot of apps that lead them to a very hazardous stature in life. आज मैंने बिगिनिंग में आपको बताया कि there is a lot of suicides happening right now, but that is an extreme case. एक्सट्रीम केस फिजिकली सुसाइड कर लेता है. उससे पहले भी मेंटली कितने बच्चे गिव अप कर रहे हैं, कितने बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये लाइफ में मैं किसी लायक हूं ही नहीं, ये मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता. सो गिविंग अप मेंटली और इमोशनली इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सुसाइड. गेटिंग इनटू डिप्रेशन. अभी डिप्रेशन ये वर्ड इतनी कॉमनली हमको सुनने को मिलता है जैसे किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो गई हो. आप मुझे बताइए. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट एनीबडी हु कैन टेल मी द हिंदी वर्ड ऑफ डिप्रेशन. इंडिया में हिंदी में डिप्रेशन को क्या बोला जाता था आज से पहले? आप में से कोई बता सकता है? आई वॉन्ट टू सी द चैट. वेयर इज द चैट वन? ओके. व्हाट इज द हिंदी वर्ड ऑफ डिप्रेशन? उदास. उदास मतलब मायूस होना, वो डिप्रेशन नहीं होता. उदास को हम बोलेंगे सैड. उदास इज नॉट डिप्रेशन. परेशान इज स्ट्रेस. परेशान इज एजिटेटेड. निराशा. निराशा मतलब किसी से निराश हो जाना. इट्स नॉट डिप्रेस्ड. डिसअपॉइंटेड, राइट? निराशा इज डिसअपॉइंटमेंट. हताश होना इज ऑल्सो डिसअपॉइंटमेंट. मैं आपसे हताश हूं, मैं आपसे डिप्रेस नहीं हूं. आई एम टायर्ड ऑफ यू. तनाव इज स्ट्रेस. मस्तिष्क तनाव. मस्तिष्क तनाव इज मेंटली स्ट्रेस. मैं ये रिसर्च करने के बाद आपसे बता रही हूँ. इंडिया में, भारतवर्ष में डिप्रेशन का कोई हिंदी वर्ड है ही नहीं, क्योंकि भारतवर्ष इस तरीके से ट्रेंड ही नहीं था कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज हमारे देश में हो.
It is something which we have imbibed from the other countries. Indian mind were very much strong before this. They were by birth knowing how to rebound and how to bounce back in life. We were born to bounce back. We were bound with resilience. हमारे पास ये बहुत natural तरीका था how to have resilience in our life, due to our friends, due to our close community, due to our joint family, due to supporting each other के अरे भाई मैं तेरे साथ हूँ. एक घर में हादसा हो जाता था, कुछ भी होता था, पूरे पड़ोसी परिवार के तरह आके खड़े हो जाते थे. इंडियन ट्रेडिशन में कभी मैं मेरा तू तेरा देख ये था ही नहीं, राइट? सो इसीलिए हमारे इसमें सर अवसाद का मतलब भी होता है कि दुख होना, उसका मतलब डिप्रेशन नहीं होता है. सो अगर आप उसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो आपको उसका मतलब डिक्शनरी में डिप्रेशन नहीं आएगा. सो लेट्स गेट बैक टू द ओल्ड संस्कृति दैट इंडिया हैड एंड लेट्स इरेडिकेट दिस वर्ड जो कॉफ एंड कोल्ड की तरह कॉमनली लोग यूज कर रहे हैं. उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को आपके घर की लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को लगता है ये कूल है बोलना. बच्चों को लगता है आई एम डिप्रेस्ड ये बोलना बहुत कूल है, बिकॉज इट इज सो लूजली सेड नाउअडेज. सो व्हाट आर द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग एट होम? तो कई बार हम लोग न्यूज बार बार देखते हैं और बड़े लोग ये कमेंट कर देते हैं इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हमारे इस समाज का कुछ नहीं हो सकता, आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता. एंड दे आर हियरिंग इट over and over and over and over again, and they think and they start believing it कि अभी तो हमारा practice life चल रहा है इंडिया में और इंडिया में कुछ हो नहीं सकता. I'm just waiting to get out of this country. maybe वहां पे सब कुछ सुनहरा है. So a lot of people are going outside not only because of their career option. They think that this place is not worth living for, and that is coming from our language, and that is how they're inculcating that यहाँ पे हमारा कुछ नहीं हो सकता. So what do we really mean by bounce back? So मैं आपको please write this flow chart down. Bounce back का मतलब होता है कि जब आपको लाइफ नीचे लेके जाए, जैसे राजश्री मैम ने बोला कि जैसे लाइफ आपको नीचे लेके जाए, आप एक स्टेप पीछे लीजिए, थोड़ा सा बैठिए और फिर वो छलांग मारिए जहां पे आप थे उसके ऊपर आप जा सको. सो बाउंसिंग बैक होने के लिए लाइफ की रिजिडिटी को सबसे पहले छोड़नी पड़ती है. आपके रिजिड बिलीफ को छोड़नी पड़ती कि ये ना ऐसे ही होता है, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता. सो बाउंसिंग बैक नीड्स अ लॉट ऑफ एजिलिटी, अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. अडॉप्टिंग अंडर प्रेशर. बाउंस बैक के बाद एक और स्टेप होती है, तो हमें अपने बच्चों को ये स्टेप से आगे लेके जाना है. सबसे पहले बच्चों को बाउंसिंग बैक के बारे में बताना है, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. उसके बाद उनको बताना है कि प्रेशर को अडॉप्ट कैसे करना है. हाँ, द वर्ल्ड इज कॉम्पिटिटिव, द वर्ल्ड इज नॉट अ बेड ऑफ रोज एंड गुडी गुडी चीज आपके लिए सब अच्छी चीजें होती रहेगी. तो वो प्रेशर में रह के हमें काम क्या करना है वो बच्चों को सिखाना है. हमें नॉट ओनली दैट कि प्रेशर में रह के काम क्या करना है, हमें बच्चों को तो ये सिखाना है कि जब प्रेशर आए, जब आपको लाइफ में ऐसा फील हो कि मेरे को बहुत सारा चैलेंजेस है, बहुत सारा देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट इज हैपनिंग कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव प्रेशर में आप थ्राइव कैसे करो, आपको मजा आना चाहिए. आर वी ट्रेनिंग आवर चाइल्ड के वो थ्राइव करे? नॉट ओनली ही लर्न्स टू हैंडल प्रेशर, बट ही इज अ पर्सन लाइक धोनी. धोनी जब भी प्रेशर में खेला है बेहतर खेला है. विराट कोहली जब भी प्रेशर में खेला है बेहतर खेला है. ही यूज्ड टू थ्राइव, उनको मजा आता था, right? That's why he's called as Dhoni is called as a cool captain. विराट के अपने तरीके हैं, but he thrives in pressure, right? Being strengthened and improved. जब भी इस तरह के लाइफ में competitive या failures आए, जब भी आपको लाइफ नीचे लेके जाए, उसमें हमेशा हमें ये सोचना है कि मैं इसमें से और स्ट्रांग होके कैसे निकलूं, इसमें से क्या सीख के निकलूं मैं. ये सारे डिस्कशन नेचुरली मेरे बच्चों को करते आना चाहिए अपने अंदर, राइट? एंड ऑल्सो जितना हम अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ावा देंगे और जितना हम अपने खुद की बैटरी को चार्ज करने में ध्यान देंगे, उतना हमारी डिप्रेशन वाली जो चीज है उसके अगेंस्ट में हम बफर क्रिएट करेंगे. वी विल क्रिएट डिस्टेंस मोर विद डिप्रेशन द मोर वी स्टार्ट चार्जिंग आवर बैटरी, आवर ओन बैटरी ऑफ आवर सेल्फ. और वो कैसे करना है उसके बारे में स्टार्ट राइटिंग दिस ऑफ.
There are 15 simple ways to bounce back in life. The first is that bring back the laughter at home. घर में वो ठहाके वापस लेके आइए. घर में हमारे जो पहले हम लोग हंस हंस के मतलब पागल हो जाया करते थे, किसी भी स्टूपिड सी चीज पे हंसने लगते थे, और पुराना एक जोक याद आता था तो भी हंसते थे. इवनिंग में सब बैठ के बातें करते थे, या फिर हम लोग यहाँ पे कल्टी कट्टा बोलते हैं, कट्टे पे बैठ के लोग एक दूसरे से बातें करते हैं. देयर हैव टू बी दोस मोमेंट्स वेयर यू जस्ट लेट योरसेल्फ गो. स्टूपिड मीनिंगलेस बातों को वापस लेके लाइए. हर बातों में लॉजिक ढूंढना बंद कर दीजिए. हर बात मीनिंगफुल होना जरूरी नहीं है, हर बात में लॉजिक होना जरूरी नहीं है. समटाइम्स मीनिंगलेस स्टूपिड थिंग्स एक्चुअली क्रिएट्स मैजिक इन लाइफ. एंड आप एक चीज ध्यान में देखोगे कि द मोर यू हैव लाफ्टर इन योर लाइफ, the more it becomes beautifully strong for your child to bounce back in that. Now another part is that, the second part is that accepting and anticipating change on a daily basis. हमारे जिंदगी में, हमारे environment में daily basis में change हो रहा है. तो कल जो मेरे लिए opportunity था, हो सकता है आज वो opportunity ना हो हमारे लिए. उस चीज को accept करना पड़ेगा. For example, it was a common thing few months back कि 10th का बोर्ड एग्जाम में ICSE बोर्ड में सारे पेपर्स दिए जाएंगे. My son is giving 10th this year, उसके 4 पेपर रुक गए. तो कल जो एक अपॉर्चुनिटी थी, आज वो एनवायरनमेंट के वजह से कंप्लीटली चेंज हो गया है. Now the discussion is happening के पुराने प्रीलियम्स के मार्क्स ले जो बहुत ही कम दिया है स्कूल ने, या नए तरीके से एग्जाम दे जिसके वजह से बच्चों को हेल्थ हैजर्ड हो सकता है. Now we have to start accepting the situations and anticipating के जो चेंज आने वाला है, मुझे उस चेंज के हिसाब से काम करते रहना पड़ेगा. So I hope you are writing these points because these points are really important for you to understand how to bounce back. Embracing the power of choices. मैंने लाइफ में कुछ डिसीजन लिए और वो डिसीजन कभी सही जाएंगे, कभी सही नहीं जाएंगे, बट वो डिसीजन मेरे थे, और वो आगे के भी जो चॉइसेस करेंगे वो भी चॉइस मैं करने वाली हूँ. तो वो जो चॉइस का पावर मेरे पास है, उस चीज को अपनाइए, कि उस चीज को इज्जत दीजिए कि वो चॉइस भी मेरा था. नहीं हुआ ना तो नो प्रॉब्लम, मेरे चॉइस थे, और हुआ तो भी नो प्रॉब्लम, मेरे चॉइस थे. राइट? सो एम्ब्रेस द पावर ऑफ चॉइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And this is most important part, इसीलिए इसको मैंने अंडरलाइन किया है. This is called celebrate small wins. एक बड़ा सा कुछ होगा हमारे जिंदगी में, उसके लिए हम बैठे हुए हैं, जिसके वजह से आज के छोटे छोटे विन भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं. We are waiting for some big event to happen in our life to be happy and to be feeling like yes I have achieved. So what are those small wins? For example, अगर मैं बहुत दिनों से बीमार रही, तो मेरे लिए बिस्तर से उतरना, चल के खुद किचन तक जाना और खुद अपना ब्रेकफास्ट लेके टेबल के बैठ के खाना, उस दिन के लिए मेरा वो विन होगा. एंड आई विल सेलिब्रेट, यस आई डिड इट टुडे. आई वाज नॉट एबल टू डू दिस फॉर अ वीक. आई वाज सो मैं इतनी बीमार थी कि मैं उसमें से उठ ही नहीं पाई, पर मैं आज बिस्तर से उठी, मैं किचन में गई, मैंने मेरे पसंद का ब्रेकफास्ट मुझे दिया गया और मैं सबके साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे आज खाना खाया. This is a win. Recognize that. Don't wait. अरे ये तो डेली चीज है, ये कौन सी विन है? नहीं, हमको वही तो रिकॉग्नाइज करना है. हमें हमारे बच्चों को यही तो ट्रेन करना है कि डोंट वेट फॉर अ बिग थिंग टू हैपन इन योर लाइफ एंड देन कॉल इट अ सक्सेस. दूसरी बात, लाइफ में ना एक्चुअली हैप्पी फील करने के लिए सक्सेस से बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता. तो अगर अपने बच्चों को हमें मोटिवेट करना है या खुद को मोटिवेट करना है, तो कभी कभी ना बार को नीचे लाना पड़ता है. जो आपका टारगेट बार है, जहां पे आप एम कर रहे हैं, उसको थोड़ा पहले नीचे लेके आओ, उसका अनुभव करो. ये छोटे सक्सेस अपने बच्चों को अनुभव किए, देख तूने आज इतना सा तो किया ना, तो वो जो पॉजिटिव फीलिंग आती है कि यस इतना सा तो मैंने किया, दैट मोटिवेट्स द पर्सन टू गो फर्दर. लेकिन हम जद्दोजहद करे जा रहे हैं, हमको 3 माइल भागना है, लेकिन मतलब 10 किलोमीटर का रन करना है. बट लेट मी सेलिब्रेट द सक्सेस के पहले मैं आधा किलोमीटर चल नहीं पा रही थी, आज मैं 1 किलोमीटर दौड़ पा रही हूँ. So please train your child into celebrating small success, because सक्सेस से बड़ा, खुद के सक्सेस से बड़ा मोटिवेटर और कुछ नहीं हो सकता.
and whenever possible, please ask for help. And how will your child ask for help? Your child can only ask for help when your child have seen you asking for help. मम्मी पापा बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, आप फेलियर दिखा ही नहीं सकते. You have to discuss with your child कि these are the things on real life I am facing on a daily basis. जब आप ये चीजें बच्चों को बताते हो कि I also need help sometimes, and go to them and you will be amazed to find, आप कभी कभी उनके साथ डिस्कस कीजिए what are you facing as a problem, and you will find that they come up with something which is so creative and innovative from their mind, because उनके दिमाग में वो बॉक्सेस अभी तक बने नहीं है जिस बॉक्स के अंदर से हम सोच रहे हैं. So asking for help is one of the things we need to train our child. All these devastating news are happening जहाँ पे इन लोगों के बेस्ट फ्रेंड, इन लोगों के रिलेटिव्स ये बोल रहे हैं कि यार तूने एक फोन क्यों नहीं किया, तूने एक बार मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगा, तूने एक बार पूछा क्यों नहीं मुझसे. Why? Because maybe that person was not trained into asking for help, because उसे बार बार बताया गया था कि स्ट्रॉन्ग बंदा बनना चाहिए. स्ट्रॉन्ग इंसान का मतलब ये होता है कि जो इंसान हमेशा सब कुछ खुद ही हैंडल करता है. This is unrealistic. We don't want to make our kids Iron Man or Thor Man or I don't know what all those people are. They are not superhuman. Human being by a species itself is super. हम इंसान बन जाना बहुत बड़ी बात है. So it's very crucial, train your child to open their mouth and to tell how to ask for help. And they cannot learn it better than when you start sharing your losses, your delicate moments, your vulnerability in the family, and you start asking for help. उनको लगेगा कि अगर मेरे मम्मी पापा इतना फेलियर फेस करने के बाद, इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद भी आज के दिन में इतना स्ट्रांग है, तो फेलियर बुरा नहीं है, तो स्ट्रगल बुरा नहीं है. Because they are discussing about it, daily basis पे face कर रहे हैं, they are asking what do I do, and then they are sorting out things based on that. Being self-aware and connected. अपने खूबियों को जानने के साथ साथ अपने स्वयं के कमियों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. कई बार हम लोग बहुत सारे चीजों को देखते हैं लेकिन खुद के बारे में जानकारी बहुत कम रखते हैं. और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगी. ये सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ हो रहा है जो बहुत ज्यादा दूसरों के लाइफ से मोटिवेशन लेने की कोशिश करते. There are too many videos nowadays talking on, you know, big people, big celebrities achieving big things. It's good to see that, but let's be realistic in life. We are not them, and our life is not their life. हमारी लाइफ की स्टोरी है, तो हमारी लाइफ के कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ हमारे लाइफ के यू नो देयर आर सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस इन आवर लाइफ. तो हम लोग जब बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल सेलिब्रिटीज के बारे में देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और होता नहीं हमसे, क्योंकि हमारे खुद के कुछ लिमिटेशन है जिसपे हमने ध्यान ही नहीं दिया. हमारे खुद के कुछ खूबियां है, उस पर भी हमने ध्यान नहीं दिया. हमने सोचा कि उसका जो खूबियां है वो खूबी हम में होना चाहिए. जरूरी नहीं है, आपका फ्लेवर अलग है, उसका फ्लेवर अलग है. तो आप पहले खुद के फ्लेवर को तो समझिए, खुद के खूबियों को तो समझिए, खुद के नेगेटिविटी या खुद के लिमिटेशन को तो समझिए. तो एक सेलिब्रिटी ने क्या अचीव किया है, उसका वीडियो 4 बार देखने से आपको थोड़ी देर के लिए इंस्पिरेशन मिल सकता है, बट उसके वजह से आपके लाइफ परमानेंटली चेंज होगी ऐसी गारंटी नहीं दिया जा सकता. समटाइम्स seeing a lot of motivational movies or you know videos or forwards actually demotivates a person. ये psychological research ने कहा है, because after some time the child thinks कि अरे बाप रे, इतना तक तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, इतना ऊपर तक तो मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी से गिव अप कर दूं. राइट? सो सेल्फ अवेयर होना और खुद के साथ कनेक्टेड रहना, खुद के खूबियों और कमियों को जानना, खुद के अस्त्रों को पहचानना और खुद के अंदर क्या डिस्ट्रक्टिवनेस है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आप यूज करेंगे. आप you will not use what Sachin Tendulkar uses as a mind frame when he's on the field, because your mind frame is your mind frame and his mind frame is his mind frame. आप उनकी कहानी जरूर सुन सकते हो, आप उनसे इंस्पायर जरूर हो सकते हो, और जरूरी भी है लोगों के बारे में सुनते रहना, बट आपको एक रियलिटी चेक रखना पड़ेगा कि आपके पास क्या है साथ साथ में. व्हाट आर योर यूनिक फ्लेवर, राइट?
and what you're handling is completely different from what they are handling in life, right? आपकी different story है altogether. Don't compare yourself to others. हाँ, ये तो बहुत बार होता रहता है, और ये तभी होता है जब हम ये मोटिवेशन देखते हैं और हमको लगता है कि वो कर पाया, हम नहीं कर पाए, उसकी जिंदगी यहाँ से वहां चली गई. सिबलिंग टू सिबलिंग कंपेयर करना प्रॉब्लमेटिक है. नेबर्स के साथ बच्चे को कंपेयर करना इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज दैट कीप्स ऑन स्टैंपिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ. आपने खुद से, आप जो परसों थे और आज आप क्या हो, वो एक बार एक स्केल में देखो ना. जस्ट राइट योरसेल्फ ऑन अ स्केल एंड रेट योरसेल्फ. अपने आप को रेटिंग करना शुरू करो कि मैं आज से एक हफ्ता पहले इसी इशू को कैसे हैंडल करता था, और आज एक हफ्ते के बाद मैं सेम इशू को कैसे हैंडल कर रहा हूँ. राइट? सो स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ योरसेल्फ एंड सी वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे. हाँ, हैव यू हर्ड अबाउट द डेफ फ्रॉग स्टोरी? आप में से कितने लोगों ने डेफ फ्रॉग की वो स्टोरी सुनी है? इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टोरी. एक फ्रॉग था जिसने एक बार सोचा कि मैं एक पहाड़ था उसके सामने, तो उसने सोचा कि मैं वो पहाड़ चढ़ता हूँ. तो वो चढ़ना शुरू किया, तो वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि मतलब आज तक किसी फ्रॉग ने शुरू नहीं किया था चढ़ना. तो बाकी फ्रॉग्स को मालूम था कि बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके हैं, ये होता तो है नहीं बिल्कुल भी. तो बाकी सब फ्रॉग ने उनको हाथ हिला के बोला, अरे ट्राई मत कर, वो बहुत ही मतलब बहुत दुर्गम रास्ता है, बहुत बेकार रास्ता है, वहां पे इतने फ्रॉग्स आधे चल के मर चुके हैं, कुचले जा चुके हैं, वहां जंगली जानवर है जो फ्रॉग को खा लेते हैं, सो डोंट डू दैट. ये वो सब कुछ बताते गए. बट वो ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, तो फ्रॉग जो था एक्चुअली वो डेफ था, तो वो ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे बाकी फ्रॉग, तो उसको लगा कि वो बोल रहे कि चलो चलो, मत रुको, इट इज गुड. तो उसको लग रहा था मोटिवेट कर रहे, इसीलिए वो चढ़ता गया और एक दिन वो पहुंच गया ऊपर तक. राइट? सो एक्चुअली ये फ्रॉग का स्टोरी पर्वत से ज्यादा अप्लाई होता है कि सारे फ्रॉग जो है एक कुएं के अंदर फंस गए थे और कोई ट्राई नहीं कर रहा था कुआं से ऊपर में आने का. एक फ्रॉग ने ट्राई किया, तो बाकी फ्रॉग ने कहा फिसलन है, नहीं ऊपर जा सकते, कभी नहीं निकल सकते, मत कर, नीचे आ, इधर ही बैठे रहे, कुएं का मेंढक बन के ही रहा. पर उसको सुनाई नहीं दिया ना ये कमेंट्स. तो कभी कभी लोगों के कमेंट्स जो है आपके बारे में, वो अनदेखा करना बहुत जरूरी हो जाता है. हमेशा लोगों के कमेंट्स को लेके दिल पे मत लेके रहो. और ये सब नेपोटिज्म, ये सारे चीजें जो बातें हो रही है, ये लोगों के कमेंट से ही जनरेट होती है. लोगों के कमेंट को आप जब बहुत दिल पे लगा लेते हो, आपके अपने लोगों ने आपके बारे में कितनी अच्छी चीजें बोली है वो आप भूल जाते हो. राइट? सो समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डेफ ईयर रखो. पीपल हैव देयर ओन ओपिनियन बेस्ड ऑन द लाइफ दैट दे आर लिविंग, नॉट बेस्ड ऑन द लाइफ दैट यू आर लिविंग. उन्होंने जो पास देखा है, उन्होंने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, उनके लाइफ में जो घटना घटी है, उसके हिसाब से वो आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं. वो अंतिम सत्य नहीं है, वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, वो सिर्फ उनके लाइफ का सत्य है. वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहे. वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता, आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता. सो इट्स वेरी important to be a deaf frog sometimes. Learning to learn and living to learn. I always say non-learner, non-listeners and non-leaders are like vertical coffins, dead at 27, buried at 72. You must teach your kids to keep on learning and unlearning. मतलब यही अंतिम सत्य है बोल के उसको बैठे रहना भी प्रॉब्लम है. नए चीजों को लेके आना, उसको लेके आने के लिए अपने बर्तन को खाली करते रहना और किसी ना किसी लर्निंग के साथ कनेक्टेड रहना. एंड बाय लर्निंग आई डू नॉट ओनली मीन एकेडमिक लर्निंग. मेरे पापा, ही इज अ वेरी फेमस राइटर ऑफ बंगाल एंड पोएट ऑफ बंगाल. ही ऑलवेज सेज दैट when you go to the books, the world comes to you. तो वर्ल्ड को विजिट करने के दो तरीके हैं, या ऐसे घूम के आओ या open the books and the world will come to you. So it's very important that the new skills that you learn, the new things you learn about other things. दुनिया कितनी बड़ी है, लोगों की सोच कितने अलग है, ये आपको पता चलता रहेगा. Work on your weakness and don't run away from them. कारपेट के नीचे डालने से घर साफ नहीं होता. जिस चीज से आप डरते हो उस चीज के ऊपर इतना काम करो कि वो आपका वीकनेस रहे ही नहीं. आई एम टॉकिंग टू द किड्स. इफ द किड्स आर लिसनिंग टू मी, इफ मैथ्स इज स्केयरिंग यू, इट इज जस्ट अ सब्जेक्ट.
दिस इज द बेस्ट टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन. इतना काम करो उसके ऊपर कि वो आपका वीकनेस रहे ही नहीं. So I have shared it before in my session also that when I was a small child, मैं तोतली और हकली दोनों थी. मुझे अपना नाम बोलने में कई सेकंड्स लग जाते थे. लोग मुझ पे तरस खाते थे और लोग मेरे मम्मी को बोलते थे इसके जीभ के नीचे सुपारी रखो, बेचारी बच्ची आगे बड़े होके उसको शादी भी कौन करेगा. एंड ऑल दिस थिंग्स सुनने को मिलता था. मेरे पास दो रास्ते थे, या उनके जो कमेंट्स है वो डेफ फ्रॉक की तरह ना लेके सुन के दिल पे ले लूं और सोचूं मेरी जिंदगी ऐसी है और उसको अंतिम सत्य मान के जिंदगी में चलूं, या तो फिर अपने वीकनेस पे इतना काम करूं कि वो मेरी वीकनेस रहे ही नहीं. आज मैं काम क्या करती हूँ, बात करने का. राइट. सो मैंने आईने के सामने, लोगों के सामने, लोगों के हंसने के बावजूद भी बात करना नहीं छोड़ा. मैं कंटिन्यूअसली बोलती गई, बात करती गई, अकेले में लोगों के बीच में बात करती गई, किसी भी सब्जेक्ट पे बात करती गई. अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे अभी भी कभी कभी मैं अटक जाती हूँ, लेकिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. जब आपके वीकनेस से आपको शर्म आना बंद हो जाएगा, लोग आपके वीकनेसेस को पॉइंट आउट करना ही बंद कर देंगे. एंड दैट इज, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं आपको जो भी बोलती हूँ मैं अपने लाइफ से बताती हूँ. आई डू नॉट से थिंग्स विच इज थियोरिटिकल. वैल्यूइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग. एंड हेल्थ एंड वेलबींग में हमारे फिजिकल हेल्थ एंड हमारे मेंटल हेल्थ दोनों आते हैं. बिलीव मी, मैंने बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पे कोई बच्चा फिटनेस को इम्पोर्टेंस देता हो और फिटनेस को रोज खेलते हुए या रोज ऐसे मजे करते हुए वो डिप्रेशन का शिकार हुआ हो. अगर हम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में इस तरह के हादसे देखते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स दैट हैज हैपेंड टू द चाइल्ड. बट किड्स हु आर रिलेटेड टू फिटनेस, चाहे वो हेल्थ फिजिकल हो या मेंटल हो, दीज किड्स हैव कम अप वेरी स्ट्रांग और उनके बाउंस बैक करने का एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग हो जाता है. तो आपके बच्चों को किसी ना किसी स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि ग्रुप में ना हम टीम वर्क सीखते हैं. हमारे स्पोर्ट्स हमको हारना सिखाती है, हारने के बाद नेक्स्ट गेम के लिए तैयार होना सिखाती है. तो किसी ना किसी स्पोर्ट्स के साथ जरूर जोड़ के रखिए. रेगुलर उनके पास एक हेल्थ का एक्टिविटी और फिटनेस का एक्टिविटी होना चाहिए. राइट. सो जब भी हम लोग फिटनेस या स्पोर्ट्स खेलते हैं, देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एंडोर्फिन दैट इज बीन रिलीज बाय द ब्रेन, एंड दैट इज द सेम हार्मोन दैट जनरेट्स हैप्पीनेस फॉर आवर माइंड एंड बॉडी. सो जितना हम लोग फिटनेस में या जिमिंग करते हैं, फिटनेस करते हैं, दिस हार्मोन्स गेट मोर जनरेटेड. सो साइंटिफिकली अगर मैं बोलूं, या हार्मोन का खेल में अगर बोलूं, तो फिटनेस जनरेट्स हैप्पीनेस हार्मोन्स. प्रैक्टिसिंग एप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड. जितना आप लाइफ में आपको क्या मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखोगे, उतना आपको वो कंप्लेन कम दिखेगा. जितना मिला है आपको, अगर अकोलेट्स मिला है आपको, अगर अपने फैमिली के लिए यू नो यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल फैमिली, इतना प्रोटेक्टिव फैमिली, इतना लविंग किड्स मिले हैं, जितना आपका ग्रैटिट्यूड ऊपर जाएगा. ये सीसॉ की तरह होता है, ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन ऊपर एंड कंप्लेंट्स कम. उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करना है मैं पहले भी बता चुकी हूँ. घर में ये प्रैक्टिस रखिए, जो चीज अच्छा नहीं लगता उसको एक सेंटेंस में बोलिए. जो चीज अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में, हर रोज 5 सेंटेंस ऐसा बोलिए, व्हाट इज मेकिंग यू हैप्पी एंड व्हाट इज द ग्रैटिट्यूड यू आर शोइंग टुवर्ड्स इट. व्हाट आर द गुड थिंग्स इन योर किड्स. आप उल्टा, हमारे बच्चे के बारे में भी हम जब बात करते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बच्चे के बारे में 5 चीजें बताओ, अब मैंने सिर्फ बोला 5 चीजें बताओ, मैंने ये नहीं बोला 5 कंसर्न वाली चीजें बताओ. बट ऑटोमेटिकली आपको पता है ना, मेरा बच्चा ना बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, बिल्कुल फोकस नहीं करता, और ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है और एक जगह टिक के बैठता नहीं. अरे मैंने बोला है 5 चीजें बताओ, 5 चीजें खराब बताओ या नेगेटिव बताओ, ऐसे तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला था. बट हमको आदत हो गई है कि हम लोग कंप्लेन वाला चीज इतना भोपू के साथ बोलते हैं, जो अच्छा हो रहा है उसके तरफ आप फोकस डालते ही नहीं है. राइट. एंड द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, उस पे मैं एक स्पेशल सेशन करने वाली हूँ. आई होप टू सी यू ऑल देयर. एंड लाइफ चेंजेस ड्रास्टिकली. हमारी जब लैंग्वेज बदलती है ना, तो कायनात हमारे लिए बदलना शुरू हो जाती है. Embrace failure and disappointment. Now this is very important. ये बोलना बहुत आसान होता है, but failure को embrace करना बहुत मुश्किल होता है. We know that. How do we do that? Failure के definition को फिर से reframe करना सीखो. Let's understand, जो अभी failure आप face कर रहे, it's an event. It is not your identity. Failure आपको define नहीं करती है कि आप किस तरह के इंसान हो. फेलियर सिर्फ इतना बताती है कि देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग विच वी स्टिल डू नॉट नो. राइट. सो हमें फेलियर को एज एन इवेंट देखना चाहिए, ना ही कि जिंदगी का अंतिम सत्य क्या है, भगवान मैं तो ऐसे ही हूँ,
मेरे लाइफ में तो ऐसे ही होने वाला है. सो डू नॉट गेट पर्सनल अबाउट फेलियर ऑल्सो. कई बार हम ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं भगवान से, भगवान व्हाई मी, व्हाई मी, व्हाई मी, हमेशा मैं ही क्यों. अरे आपको लगता है कि ये जो दुख आप झेल रहे हो, ये जो फेलियर आप झेल रहे हो, ये सिर्फ आपको ही मिला है इस दुनिया में? नॉट सो. ये जो आप झेल रहे हो, ये कई बार कई लोगों के साथ हो चुका है, एंड दे हैव कम आउट ऑफ इट ऑल्सो. It is not a unique thing that you are going through. You think it is very unique. It is not so. So many people, thousands and lakhs and crores of people have gone through the same feeling and the same feeling failure which you are handling right now. So do not get personal with failure. Treat it as an event. That is how you can redefine failure. जब उसका आप बोलेंगे ये एक इवेंट था, हो गया, what's the next event? Let's go for that. राइट. सो फेलियर को एक एक गेम की तरह लीजिए और उसको पर्सनली मत लीजिए कि मेरे ही साथ लाइफ में ऐसा क्यों होता है. यू आर नॉट, आप यूनिक हो, नो डाउट अबाउट इट, बट आपके जैसे, आपसे भी ज्यादा लोगों ने दर्द को झेला है, लाइफ में फेलियर को झेला है. आपको जो लग रहा है ना वाई मी, आप अकेले वाई मी नहीं हो, इससे भी ज्यादा लोगों ने हैंडल किया हुआ है. एंड प्लीज बी प्रेजेंट टू दैट. बी एडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड फ्लो. जितना आप फ्लेक्सिबल रहोगे, वक्त के साथ अपने आप को फ्लो करना सिखाओगे. एंड फ्लोइंग मीन्स लीव इट एंड गो अहेड. लेट इट फ्लो फ्रॉम योर टीयर्स. लेट योर इमोशंस फ्लो. लेट नॉट डिफाइन स्ट्रेंथ एज कीपिंग थिंग्स टू आवरसेल्फ. लेट्स बी फ्लेक्सिबल, लेट्स बी एडेप्टेबल. कि आज ये सिचुएशन है, मैं अपने आप को इस तरह से कैसे ढाल सकता हूँ. नहीं, दुनिया बदल जाएगी, मैं नहीं बदलूंगा. फिर तो टूटना पड़ेगा ना भाई. राइट. सो कितने ऑप्शंस हो सकते थे सुशांत सिंह के पास. आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको लोग रिडिक्यूल कर रहे हैं, आपको लोग फेवरिज्म में लेके जा रहे हैं. कुछ भी करो, लेकिन आप कुछ और काम करो. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड. उससे ऊपर का कोई स्पीशीज ही नहीं है. एंड यू आर अ टैलेंटेड पर्सन. ज्यादा से ज्यादा अपने घर चले जाओ यार, अगेन स्टार्ट अ न्यू. बट दीज थिंग्स आर नॉट ट्रेन्ड टू एनी ऑफ द किड्स. आपके पास अगर गैजेट नहीं है, या आपको अगर किसी ने रिडिक्यूल किया, अभी यहाँ पे एक बच्चे ने सुसाइड किया क्योंकि उसके फ्रेंड ने उनको ट्रांसजेंडर बताया. वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. यू हैव टू, अगर आपको वो ग्रुप अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप उसमें बंदे जा रहे हो, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू कम आउट ऑफ इट. देयर कैन नॉट बी rigidity in your thoughts. There cannot be rigidity in your group activities, in any activities. आपके इतने ही दायरे नहीं हो सकते. अगर आपका एक करियर या एक फेज ऑफ लाइफ पूरा क्रैश डाउन भी हो गया ना, पूरा क्रैश डाउन, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अगेन टू जीरो, और कुछ नया चीज, कुछ नया ऑप्शन, एकदम अलग, एकदम अनोखा कैसे चालू कर सकते. राइट. एंड रिफ्लेक्ट ऑन. और जब भी आपको लगे ना नहीं, इट्स नॉट इनफ फॉर मी, लेट्स गिव अप, एक बार सोचिए कि आपने ये सब शुरू क्यों किया था. So there is a tendency called 99 meters run. Do you know what this tendency means? How many of you know of this tendency called 99 meter run? Right. So the tendency about 99 meter run is that के जो ओलंपिक्स में 100 मीटर का रेस होता है, उसमें जो जीतता है वो इसलिए नहीं जीतता कि वो बाकी लोगों से बहुत अच्छा है. क्योंकि ओलंपिक्स में सिलेक्ट होने के लिए वैसे भी आपको एक लेवल का खिलाड़ी बनना ही पड़ता है. यू हैव टू बी अ रनर ऑफ दैट दैट लेवल. तो प्रैक्टिस तो सब लोग करते हैं, रनिंग भी सब लोगों का बहुत स्ट्रांग रहता है, बिकॉज दे आर ओलंपिक प्लेयर्स. राइट. हारते ज्यादातर लोग इसलिए है क्योंकि जब वो 100 मीटर का रेस फुल फ्लेजेडली दौड़ते रहते हैं ना, 99 मीटर पे आके उन लोगों का एनर्जी खत्म हो जाता है और वो लोग गिव अप कर देते हैं. And we don't train our kids into that you have to finish what you have started. चाहे कैसे भी हो, आपको अगर जीतता ना, कोई कार भी जीत जाता है, लेकिन यश उसको मिलता है जो गेम को फिनिश करना जानता है. हारने के बाद भी ना उसके चर्चे होते हैं कि क्या गेम फिनिशर था यार, हारा तो है लेकिन क्या गेम फिनिश किया, गिव अप नहीं किया लास्ट के मोमेंट में. राइट. सो चर्चे तो उसके होते हैं जो 100 मीटर्स को कंप्लीट करता है. So that's very important that don't be a part of 99 meter race. Complete that last 1 meter. Last 1 meter में जाके लोग give up करते. So the approach is that
start accepting the situation. And to the parents, please start accepting the kids the way they are and the way they are not. मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों है, वो जो क्वेश्चन होता है ना आपका बार बार उससे, तो यू क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों नहीं कर सकता. योर चाइल्ड माइंड हैव गिवन यू हंड्रेड्स ऑफ रीजन ऑफ ग्लोरी. उसके पास बहुत सारे अच्छी चीजें, अच्छे रीजंस दिए आपको प्राउड फील करने का, ग्लोरी करने का, बट वी आर पॉइंटिंग आउट ऑन थिंग्स which are not acceptable by us as his nature, as his behavior, as his actions. तू ऐसा क्यों है, तू बार बार स्लो क्यों हो जाता है, तू पढ़ता क्यों नहीं है, तू कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करता, तू जिद्दी क्यों है. अरे अच्छी चीजें भी तो होंगे, उसका एक लिस्ट बनाइए प्लीज. सदा हमने ऐप देखा, हुनर को ना देखा. अब टाइम है हमें अपने बच्चों का हुनर उसी को बताने के लिए, बिकॉज अगर हम नहीं बताएंगे, वैसे भी दुनिया को इंटरेस्ट नहीं है हमारे बच्चों में कि दुनिया आके अलग से बताए. राइट. अप्रिशिएट द वर्क ऑफ द चाइल्ड, नॉट ओनली द चाइल्ड. तो आपका बच्चा जब कुछ करता है, तो अगर आप बोलते हाँ हाँ मेरा बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, इंस्टेड ऑफ दैट आपका बच्चा, फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा ड्रॉइंग करके लाता है, वेरी गुड ना बोल के बी विद दैट चाइल्ड, सी व्हाट ही हैज ड्रॉन एंड स्टार्ट डिस्कसिंग कि आपने ये पहाड़ जो है वो ब्लैकिश क्यों किया है, अच्छा ये सन जो है आपने आधा क्यों इधर ड्रॉ किया है, या सन का कलर ऐसा क्यों है. योर चाइल्ड विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट यू नोटिस व्हाट ही इज डूइंग, यू आर अप्रिशिएटिंग द वर्क. तो कभी कभी अगर उसने कुछ खराब किया, तो आपके पास वो मौका रहेगा कि खराब चीज को भी आप डिस्क्राइब करो, जब तब वो इस चीज को एक्सेप्ट करे, बिकॉज ये डिस्कशन का आपका ट्रेडिशन बन चुका है घर में. सो स्टार्ट लुकिंग एट द वर्क एंड अप्रिशिएट द वर्क रादर देन अप्रिशिएटिंग ओनली his अच्छा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा. तो rather than appreciating the person, start appreciating the work he is doing. That will give him more confidence that you are noticing and you are involved and you are interested in his work. Adventure कीजिए बच्चों के साथ, थके हुए लोगों के साथ. कोई भी वैसे भी बात नहीं करना चाहता. The biggest problem that teens are facing today is that their mom and dad are so much engrossed in their own problem that the house is becoming silent. Nobody is interested to talk to each other, so they resort to something different. जहाँ पे उनका एड्रेनल हाई हो रहा है, जहाँ पे उनको ज्यादा एडवेंचर दिख रहा है, वहां पे वो they are going to those things. So अगर हमें बच्चों के साथ रिलेटेड रहना है, बच्चों के लाइफ में पता करना है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, या उनसे इन्वॉल्व रहना है, उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना है, उनके अंदर जो एड्रेनल रश चल रहा है, उस एड्रेनल रश को आपको थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए, करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इफ यू वांट देम टू एक्सेप्ट यू एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. नहीं तो आप दोनों के बीच में एक ग्लास का दीवार बन जाएगा, जिसके बीच में से आप एक दूसरे को देख तो सकोगे पर सुन नहीं सकोगे. So now they are searching, they are growing up, they are searching for adventures. उनको ऐसे गाने अच्छे लगते हैं जिसमें हाई हाई इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी हो, ऐसे उनको गेम्स अच्छे लगते हैं, ऐसे लोगों के साथ डिस्कशन अच्छा लगता है. आर वी एडवेंचरस इनफ? क्योंकि हम आते हैं घर में और बच्चा कुछ बोलने जाता है, हम बोलते प्लीज नॉट नाउ, मैं बहुत थक गया हूँ. अभी ऐसे थके हुए लोगों के साथ कौन बात करना चाहेगा, कौन उसको अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करना चाहेगा. They will resort to people who are not you, and they will ask question to them and they will get weird answer which we don't want. But उसके लिए क्या हम एडवेंचर्स कर रहे हैं? बारिश में जाइए, बाहर भीगिए, पेड़ पे चढ़ना सिखाइए, बहुत सारे गेम्स आउटडोर पे कीजिए, कूदिए, जंप, डू समथिंग इरेशनल, डू समथिंग रियली स्टूपिड. हमेशा बहुत मैच्योरिटी दिखाना, I don't think it is always required to be really matured all the time. हमारे अंदर वो बचपना है, वो बचपना को बाहर कभी कभी लेके आना, इरेशनल होना, इलॉजिकल होना बहुत जरूरी होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट आई हैव 2 kids. Krishna, my son, is 16-year-old, and my daughter Jia is 15 years old. 16 and half Krishna hai, and daughter is 15 years old. Now I keep on coaching all over India, but मैं मेरे बच्चों के लिए एक सिर्फ माँ हूँ, सिर्फ माँ नहीं, माँ हूँ. माँ by itself is a very important responsibility to fulfill. अगर मैं उनका कोच भी बनने जाऊँ ना, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, ना उनके लिए पॉसिबल होगा, because they listen to me as मम्मी का शुरू हो गया. तो I have to attach them to a third person who is a coach. तो माता पिता गुरु देवम, ये 4 पिलर जो है वो बच्चों के लाइफ में बहुत जरूरी होता है. आप माँ का रोल निभा रहे हो,
या बाप का रोल निभा रहे हो, दैट बाय इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल. डोंट गेट इनटू अ डबल जॉब, बिकॉज वो आपको एक ही तरीके से सुनते हैं. तो आप एक लेवल तक अच्छी पेरेंटिंग, अच्छी परवरिश कर रहे हो, लेकिन हर चीज में अगर आप घुस के कोचिंग देने की कोशिश करो तो वो शायद आपको उस तरीके से ना सुने, या हर चीज में उनको आपसे वैसे भी एडवाइस नहीं चाहिए. And there are people who are trained to do that. And we have a very classic example that India में द्रोणाचार्य award इसलिए दिया जाता है because द्रोणाचार्य was the best coach ever that India has seen. Because द्रोणाचार्य has created the best student called Arjuna, but द्रोणाचार्य could not create Ashwatthama. जब हम मम्मी बनके या पापा बनके कोच भी बनने की कोशिश करते हैं तो वो जंबल अप हो जाता है. एंड एज मॉम एंड डैड, दैट बाय इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज टास्क टू डू. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर मुझे बुखार आया हुआ है 103, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट? लेकिन अगर मेरे बच्चे को भी बुखार आ गया है तो उस दिन मैं रात भर जागूंगी, बच्चे के बाजू में बैठूंगी, उसको ठीक करके उठाऊंगी. That what is a mom is, that what is a dad is, right? उसके साथ अगर हम कोच भी बनने की कोशिश करें तो बच्चा रिसीव नहीं कर पाता कि आपका आइडेंटिटी क्या है. तो कई बार वो प्रॉब्लम होता है. तो do you have a coach for your child? Are you attaching your child to a coach? Because that's very important. For that only I have come up with, ये सारे हमने बातें की है, ये 1 घंटे में मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ. But to attach your child, I need you to talk to your child on some daily basis. हमारे पास, और बच्चे तभी सबसे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं जब वो खुश रहते हैं, या जिनको वो पसंद करते हैं उनसे सीखना वो ज्यादा पसंद करते हैं. So we have come up with this brilliant idea called monsoon मस्ती. मैं आपको सिर्फ 3 मिनट में ये चीज बताऊंगी, प्लीज स्टे विथ मी. तो मॉनसून मस्ती में हम क्या करते हैं, इट्स अ 2 hours per day class only for 15 days. Only there are 13 sessions with a break in between. तो 2 घंटे में पहला आधा घंटा मैं आपके बच्चों को के साथ अलग अलग टॉपिक पे बात करती हूँ. इट कैन बी गैजेट एडिक्शन, इट कैन बी बाउंसिंग बैक, इट कैन बी व्हाई कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट, इट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पीपल्स थॉट प्रोसेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल्स थॉट प्रोसेस, हाउ टू टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन लाइफ, पढ़ाई को अपने लाइफ का गेम बना के कैसे इजीली पढ़ाई करना है, पढ़ाई को प्लान कैसे करना है. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं आपके बच्चों के साथ कोचिंग करूंगी, बात करूंगी फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर. नेक्स्ट 1.5 hour वी हैव celebrity coaches. We have got around 10 celebrity coaches with us who will talk, who will get them into activities, different type of activities. For example, Ankit Tanna is a Shamak Davar instructor. He is there into Bollywood dance training since last 13 years. वो बच्चों को dance and how to express their life in a very different way, उसके ऊपर वो सिखाएंगे. Bollywood dance different types. तो दैट्स अंकित तन्ना. उन्होंने माधुरी दीक्षित से लेके रणवीर सिंह से लेके अभिषेक बच्चन बहुत लोगों को सिखाया है. सो ही विल बी देयर एज आवर कोच. We have Chandrankit Sharma, who is a TED Talk speaker and a very famous magician and mentalist, जिनको गूगल वगैरह ने भी हायर किया हुआ है. He will teach the kids not only to do tricks but also how to balance their brain. जब ब्रेन बैलेंसिंग होता है ना, तब कंसंट्रेशन, फोकस और रिकलेक्शन प्रोसेस ऑफ द ब्रेन फास्टर हो जाता है, which is very important for our academic years. We also have Anushri Malhotra, who is a fashion celebrity fashion designer. बच्चों को natural products, nature से related printing, पुराने चीजों को ट्रेंडी कैसे बनाए, उसके बारे में कैसे सोचे, अलग तरीके से क्रिएटिविटी कैसे लेके आए, उसके बारे में ट्रेन करेंगे. We also, this is Anushri Malhotra with different celebrities. We also have Navonita Mukherjee. She is a passionate baker and she is into cooking. इसने 6 साल के हमारे, we have already finished 2 batches. This is the 3rd batch we are going for. 6 साल के बच्चों ने कुकीज बनाया है नवनीता का क्लास अटेंड करके. It is not only about making things, it is understanding how important good food is, how important cooking is. मम्मी किचन में जाके जादू नहीं करके आती है, उसमें बहुत सारा काम करती है, तब जाके अच्छा खाना परोसा जाता है. And we also have Jitesh Patil, who is a CEO of Pixel Schools, who will train the child into different tricks of photography and videography. We also have Abhishek Agarwal with us, जो बच्चों को value for money सिखाएंगे.
हम लोग बोलते हैं कुकिंग एंड स्विमिंग आर द बेसिक लाइफ स्किल्स ऑफ लाइफ। आप एक बात बताइए, कुकिंग बेकिंग तो ठीक है करेंगे, या फिर स्विमिंग कभी काम में आएगा? नहीं आएगा। हर बच्चा बड़ा होकर पैसा हैंडल करने वाला है। क्या हम बच्चे को बचपन से ट्रेन करते हैं व्हाट इज द वैल्यू फॉर मनी? फॉर एग्जाम्पल, वो जो बॉल आता है जिसमें जेम्स आता है, उसमें 9 ग्राम्स का जेम्स आता है और वो 50 रुपए का होता है, जबकि 50 ग्राम का जेम्स 12 रुपए में एक पैकेट में मिलता है। वो बॉल खेलने लायक भी नहीं होता, उसको गिराओ तो क्रैक हो जाता है। So we are not actually giving logic to the kids and making them understand in a gamified manner कि आपके पेरेंट्स जो कमा के लाते हैं उसके पीछे बहुत सारा मेहनत है। How to value that? We also have अजय सरोदे, जिन्होंने 25 साल कैलीग्राफी में अपना पैशन के तरह उसको किया है। He is also a life coach, जो बच्चों को सिर्फ कैलीग्राफी नहीं सिखाते, हैंडराइटिंग के साथ प्यार करना सिखाते हैं, एंड बड़े प्रॉब्लम्स को लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कैसे करना है कैलीग्राफी के साथ वो सोच बच्चों को देते हैं। So the highlights are of this training, which is coming as Monsoon Masti, which is starting from this Monday, is daily life coaching and magic and mentalist developed by Chandrankit Sharma, Bollywood dance, fashion and grooming, calligraphy, tasty snack and cooking, marvelous mobile gadget addiction, gadget advantages, rise beyond barrier, fitness के लिए life story, money wise basic finance के लिए बातें, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारे चीजें होगी, प्लस मेरी कोचिंग होगी उसके अंदर। एंड ये सारे चीजें on all these 13 sessions into 2 hours for 2 weeks is only with all the celebrity coaches, and my coaching is only for 3,000 rupees. Now मेरे ख्याल से हम 2 डिनर कम कर ले चलता है, लेकिन आज के दिन में ये कोचिंग, ये बच्चों को बताना कि गैजेट एडिक्शन से पावर में कैसे जाना है, किड्स बिहेवियर को, रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, कमिटमेंट, जंक फूड, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बच्चों के साथ बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द सेशन में हमने देखा कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हम लोग पढ़ाई 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 कर रहे हैं, और जो हम हैप्पीनेस, सैटिस्फाइड, हम्बलनेस, इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी कोचिंग कहाँ हो रही है? लाइफ के बारे में आपसे, आपके बच्चों से कौन बात कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस? उनको हैप्पीनेस क्वोशंट में कौन लेके जा रहा है? सो इट्स माय डिमांड टू योर पेरेंट्स that please join this, it's starting from Monday. I will be there with your kids. आपको अगर कुछ भी इसके बारे में डेटा चाहिए तो प्लीज लेट मी नो. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एप्टीट्यूड इन लाइफ, हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी, हाउ टू बी ईज एट एग्जाम, नॉट गिविंग अप इन लाइफ, बाउंसिंग बैक के ऊपर बच्चों से मैं बात करूंगी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हाउ टू बी इफेक्टिव इन लाइफ. And you can also get connected to me through my YouTube channel. I have my YouTube channel, we have our Facebook, and और यहाँ पे बहुत सारे पुराने पार्टिसिपेंट्स के मम्मियां बैठी हुई हैं, उनके लिए मैं एक चीज बता दूं, मॉनसून मस्ती में हमारे कोचेस सेम है, बट सारे के सारे इवेंट, सारे के सारे जो हमारे डांस से लेके, मैजिक से लेके, कुकिंग से लेके, सारे चीज नए होने वाले. ऑल द आइटम्स विल बी न्यू, nothing will be repeated. So if you are thinking that they are missing the class, if you are thinking that मेरे साथ 15 दिन रह के आपके बच्चे का कोई एक बिहेवियर में जरूर सुधार आएगा, क्योंकि मैं तो कमिटमेंट के साथ काम करती हूँ, मेरे सारे कोचेस कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, and if you feel that it is worth it कि 15 दिन 2-2 घंटे 4 से 6 बजे मेरे साथ और मेरे कोचेस के साथ रह के आपका बच्चे का पैराडिग्म शिफ्ट थोड़ा सा भी हुआ, I think it is worth it to take that kind of chance, because हम लोग लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं उनके भविष्य के लिए, करियर ऑप्शन के लिए, कॉलेज एडमिशन के लिए, शादी के लिए, शादी के इवेंट के लिए, बट अगर उनको लाइफ नहीं सिखाया ना, अगर उनको बाउंसिंग बैक नहीं सिखाया ना, अगर उनको इमोशनल बैलेंसिंग नहीं सिखाया ना, ये दुखद घटना जो होती आ रही है वो होती रहेगी. सो इट्स माय डिमांड टू यू कि आप आपके आजू बाजू में भी जरूर बताएं about this fantastic coaching that we are having. Somebody is asking, can we share this 15 simple ways to them? If they share their mobile number, we can definitely do that. Of course, you can share this 15 simple ways, Roma. It will be a pleasure for us. Please send me your mobile number. I can send you the and अगर आप में से किसी को वो 15 ways चाहिए, आप अपना मोबाइल नंबर हमें प्राइवेटली इसमें चैट बॉक्स में भेज दीजिए, या 9822268333 पे हमें कांटेक्ट कीजिए.
We will really get back to you on this. And आप लोगों में से बहुत सारे लोग इतने देर तक रहे, thank you so much. Before leaving, leave a comment on this chat box कि आज का talk आप लोगों को कैसा लगा, because हर बार आपके comment ही हैं जो हमें motivate करते हैं कि हम नया कुछ आप लोगों के साथ लेके आए. This is the 16th session on लॉकडाउन पीरियड टाइम ऑन सैटरडे, जिसमें मैंने एक भी सेशन में एक भी टॉपिक रिपीट नहीं किया है. एवरी टाइम आई ट्राई टू ब्रिंग समथिंग कंप्लीटली न्यू, रियलिस्टिक एंड वेरी क्लोज टू योर लाइफ. एंड मैं ज्यादातर चीजें जो आपको बताती हूँ वो मेरे लाइफ से बताती हूँ. सो थैंक यू सो मच तुलसीराम जी, आपने एक्सीलेंट बोला है. एंड आप में से जितने लोग इस बाउंसिंग बैक के बारे में जानना चाहते हैं, जितने लोग मेरे काम के बारे में जानना चाहते हैं, जितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके बच्चों से बात करूं, एक बार मैं आपके बच्चों के बिहेवियर को एक बार समझूं, उनके साथ थोड़ा काम करने का मुझे मौका मिले, मेरे कोचेस को मौका मिले, तो इससे बेहतर टाइम और मौका नहीं मिलेगा. बिकॉज मैं अगर 1 घंटे का काउंसलिंग भी करती हूँ किसी के साथ, तो आई चार्ज 7,500 to 6,000 एज पर द काउंसलिंग. यहाँ पे हम लोग 3,000 में 15 दिन आपका बच्चा थोड़ा 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 रियल लाइफ सिचुएशन के साथ मेरे साथ रहेंगे. आप लोगों में से जो लोग यहाँ पे अभी भी है, मैं आपको मेरा एक स्टोरी बताती हूँ, हाउ डिड आई बाउंस बैक इन मेनी वेज. तो मुझे एक स्टोरी याद आई कि जब मैं 10th में थी, मैं बंगाली जो है एज अ प्राइवेट सब्जेक्ट पढ़ती थी. आई वॉज इन नागपुर, तो वहां पे मुझे प्राइवेट में 3rd लैंग्वेज में बंगाली लेना पड़ा. हमारे साथ कुछ लड़के भी पढ़ते थे दूसरे स्कूल्स के, एंड दे वर बिग बुलीज बिकॉज वो बड़े घर से आते थे. 10th में 11th में उनके पास गाड़ी थी, उनके बड़े भाई के पास गाड़ी थी, वो लोग छोड़ने के लिए आते थे. और लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ होती थी वो मेरे साथ होती थी, वो ट्यूशन में जाते वक्त. तो उनको ये लगता था कि ये लड़की जो है वो एवरेज भी कर ले वो बहुत बड़ी बात है, हमारे साथ टक्कर लेगी. वो उसमें से एक लड़का भी बोलता था कि यू विल क्रॉस माई मार्क्स, देखते हैं कैसे. एक बार मैं प्रीलियम्स देने जा रही थी, और प्रीलियम्स देते जाते वक्त एक जीप पीछे से आई, वही लड़कों का पूरा ग्रुप था, उसमें से उनका बड़ा भाई चला रहा था, और मैं साइकिल से जा रही थी. उन्होंने जानबूझ के मेरे साइकिल को पीछे से टक्कर मारा और मैं उछल के सामने जाके गिरी. और जब मैं गिरी तब मेरे ये नाक जो है वो पूरा फट गया, ये होंठ यहाँ से फट गया और पूरा खून निकलने लगा. एंड प्रीलियम्स था. अगर मैं घर चली जाती थी और अगर मैं मम्मी को ये बोलती थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं नहीं दे पाई पेपर, और मैं मेरे टीचर को भी ये दिखा देती थी, तो कोई मुझ पे कोई सवाल नहीं करता था, कोई मुझे कुछ नहीं बोलता था कि ये तू वापस क्यों आई, तूने एग्जाम क्यों नहीं दिया. बट मुझे बाउंस बैक करना था, मुझे ये बताना था उन लड़कों को कि ये गलत है, ये आप किसी के साथ नहीं कर सकते, और ये मैं मेरे साथ तो आपको करने नहीं दूंगी, और आप मुझे जितना रोकोगे मैं उतना बाउंस बैक करके आके दिखाऊंगी. मैंने साइकिल उठाया, उसका चक्का टेढ़ा हो गया था, चक्कों को सीधा करवाया. थोड़ी देर के लिए तो अंधेरा छा गया था, लोग आ गए थे, मुझे उठा रहे थे, और उसके बाद मैंने वो साइकिल को ठीक करके मैं फिर पहुंची. आधा घंटा लेट पहुंची मेरे पेपर देने के लिए. मैं हाथों में एक रुमाल लेके उसको खून को बंद करने की कोशिश करते हुए लिख रही थी. एंड मेरा पेपर इससे अच्छा कभी नहीं गया. I scored the highest in the class in my prelims in that particular subject. जो particular subject में रोकने के लिए उन्होंने मुझे पीछे से टक्कर मारा था, और उनको लगा था कि ये लड़की उठ भी नहीं पाएगी और आगे के भी फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएगी, कोई भी पेपर नहीं दे पाएगी. उनका इंटेंशन तो वो था. बट मेरा मेंटल स्ट्रेंथ के वजह से मैंने उनको ही नहीं, अपने आप को उस दिन बताया कि लाइफ में बाउंस बैक करना कैसे चाहिए, और जितना आगे वाले आपको ये बताए कि तू ये नहीं कर सकती, उतना अपने एनर्जी से आप खुद को बताओ कि मैं ये जरूर करके दिखाऊंगी. तो ये सारे चीजें मैं अपने लाइफ से आपके बच्चों को बताती हूँ. देयर इज नो थियरी दैट आई यूज, देयर इज नो थियरिटिकल ज्ञान. आज के बच्चों को ज्ञान पसंद ही नहीं है. तो आपको अगर सचमुच लगता है कि एज अ कोच आई कैन हेल्प योर चाइल्ड, योर फैमिली और योर फ्रेंड्स फैमिली, please leave your numbers here so that my team can contact you. It's not a big amount, it's an amount of 100 rupees per hour only. It is 3,000 rupees for 15 days with these kind of celebrity coach and me, which we are talking about. I think that's a very good. और ये शायद अगले बार possible ना हो, क्योंकि normalize होने की वजह से हमें ये coaches they'll get back to their regular work. तो ये coaches शायद हमको अगले बार नहीं मिलेंगे. So हमारे जो regular participants है, this time there will be new dance, new magic tricks, new sessions of calligraphy, and everything will be there. So please don't leave that. Please don't miss that out. And
Is it good for 7-year-old girl? Yes, Tulsi Ram ji, this is for 7 to 17 ऑफिशियली, बट हमारे लास्ट बैच में 6 साल का बच्चा भी था, और मैंने जैसे बोला उसने मम्मी को कुकीज बना के खिलाया, और बहुत सारे बच्चे हमारे 6 साल के भी आते हैं यहाँ पे. सो ऑफिशियली हम लोग बोलते हैं 7 to 17, बट हमारे यहाँ 18 साल के भी बच्चे आते हैं. एक लड़की लास्ट टाइम 22 इयर्स की थी, उसने भी बहुत कुछ सीखा. सीखने का कोई उम्र नहीं होता. बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग इज दैट जो बच्चे शाई फील करते हैं ग्रुप में आके काम करने को, दिस इज द बेस्ट कंफर्ट जोन फॉर देम, बिकॉज वो अपने घर में बैठ के कंफर्टेबली ग्रुप में भी काम कर रहे हैं और साथ में अकेले भी है. तो उनको वो कंफर्ट जोन मिलता है जिसमें कोई उनको देख नहीं रहा है, कोई उनको टोक नहीं रहा है, कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा है, कोई उनका फन नहीं बना रहा है. सो पीपल हु आर people who are shy, kids who are introvert, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है टू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ग्रुप कोचिंग. और ऑनलाइन जो ट्रेनिंग अभी एक चलन बनते जा रहा है, वो ट्रेनिंग सीखने के लिए भी ये बेस्ट मौका है, बिकॉज बच्चों को हैप्पीनेस के थ्रू से आप बता सकते हो कि आगे चल के ऑनलाइन ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन. So thank you so much all of you to share about the kids workshop, like Swati ji. So Swati ji, and there are many people जिन्होंने हमारे kids workshop को experience किया है. तो आप में से जो हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स के मम्मियां हैं, अगर आप 1-2 लाइन में शेयर करना चाहते हैं what you experienced in your workshop ये. So is anybody there who wants to share what? Audrey is there. Audrey also can share from her life. So I will just put your mic on unmute. मैं सबको unmute का option दे रही हूँ. So you can please unmute yourself. Yeah, now you can unmute yourself and you can please share. And हमको कुछ question भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं unmute करके. Hi. Yes, who wants to talk? किसी ने unmute किया है? If you can just tell your name. Hi, Akanksha. Hi. Actually, I have a question regarding the monsoon masti thing. जैसे जो sessions में जैसे I think your talking session with Shreyansh, I'm looking forward to it apart from the other activities which he's going to learn. So I just want to know, will there be any window from where we as parents can also be a part of that talk session, or you think this will become a like hovering of? Oh wow, that is a very good question. आप कभी भी, there are so many parents who have participated in dance and all with their kids. So all I want to request Akanksha is that कि जब भी आप ये करो, आप बच्चे को एक बार उसके साथ बात करके उसको इसमें enroll कर लो. Because I feel what I feel is if I will be a part along with him, then he will not speak his heart out. Like we have seen it quite a few times that इसकी teachers बोलती है कि he is doing very wonderful in a group performance. So what I'll do, Akanksha, is that I will give you an access to a different device. आप दूसरे रूम से मेरे साथ दूसरे डिवाइस से अपने आप को म्यूट करके और वीडियो ऑफ करके you can stay connected. Okay, maybe change the name or something. हाँ, you can do that. You can do that. I will give you that access. Thank you So much. Thank you. And about today's session, definitely it was something which was running in mostly I think as mothers, as aunties who are elder nephews, वो चल रहा था दिमाग में. So good to, means it was a very good session for us to understand कि what is that we can start today, so that जब वो लोग अपनी performance वाली age पे पहुंचेंगे, so they can cry it out, they can ask for help. Absolutely, that is what need to train. अभी बाकी के coaching करना शुरू करना जरूरी है, apart from studies and studies. Yeah. Right. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Anybody else who wants to speak? Archana, and there are so many other people who are there. Anybody who wants to speak right now? Aarti, hi Aarti. Aarti is always there. हमेशा हमारे क्लास में रहते हैं. So anybody else is there who wants to ask me the question?
can unmute. आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. You can just say hi. Say bye. So bye to my Facebook people, Facebook listeners. Thank you so much for being with me and thank you for listening to this session. Hope to see you on next Saturday again with something very new and very exciting. Next Saturday, same time, 5 to 6 o'clock. Thank you, Vaishali ji. Thank you, Aparna ji. Before leaving, please leave your comments on the chat box. And again, if you want some information about our upcoming मॉनसून मस्ती, ये नाम मस्ती का है ताकि हम मस्ती के साथ बच्चों को बहुत सारे वैल्यूज सिखा सके लाइफ के. सो प्लीज गेट बैक टू मी ऑन विथ योर नंबर्स एंड वी विल गेट बैक टू यू. मंडे से शुरू हो रहा है एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट सेशन विद दिस सेलिब्रिटी कोचेस. इसके बाद हमारे साथ ये सेलिब्रिटी कोचेस नहीं होंगे. So don't miss this chance at any cost because this cost is really very less for anybody to pay for these kind of coaches and my coaching for 15 days, that is 2 weeks. And we work with a commitment and you will see a lot of difference the way your child acts, the way your child thinks and the way your child participates. So that is for sure. Bhagya is also there with us and so many other people whom we regularly meet. जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के मम्मी हैं वो लोग हमेशा आते हैं. ऑड्री इज देयर. थैंक यू ऑड्री फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड लिसनिंग सो you know with so much of patience every time. Chandra Sudha, Dr. Chandra Sudha is there. Dr. Chandra Sudha, you would like to say something to the parents? She is having her class in excellence class and she is into coaching and she is a very well known coach into 10th and 12th standard science and maths and also English speaking class karti hai. Dr. Chandra Sudha, if you want to introduce. Yes, thank you very much, ma'am. I am Dr. Chandra Sudha and we are from Excellence Coaching class. We intensively provide coaching for 11, 12 and Vedic mathematics for UPSC and MPSC exams. And ma'am, I every time used to take the time for these sessions. I don't miss actually the Thank you sessions. so much, It's Chandra. very helpful and we should join the monsoon magic as well. Thank you so much. Thank you. We look forward Thank to have you. It's for Thank everybody. you, thank Masti is for everybody. हर किसी के लिए है. Yes, मस्ती. You that's नहीं. Thank you so much. So thank you so much everybody and thanks for being very with much us. frustrated with all these things, lockdown and all those effects. Right. So right. thank you very much, ma'am. Yes, Thank you so thank much, Sudha. Thanks. It's a pleasure to have you here. Yashraj ji, Nisha Bansal ने हाथ ऊपर किया. Nisha Bansal, you want to say something? Yes, Nisha hi Bansal? मैम. Yeah, hi. मैम आज का सेशन तो बहुत ही अमेजिंग था और बहुत कुछ सीखने भी मिला मुझे तो. Thank you so much. I hope you have noted down the things. Yeah, I had noted everything. कम से और कम आपकी 4 वजह लोगों से- को जाके बताइए. 4-5 लोगों को. पता नहीं हम किसके घर में जाके किसको हेल्प कर दे. We never know. या श्योर पक्का. और आपकी वजह से काफी पॉजिटिविटी भी आई है जैसे लाइफ में ने क्या. I learned many positive things. Thank you so much. That's मैम I just want to ask one question. जी. कि जैसे मेरी डॉटर है मतलब डॉटर भी बोलो बच्चे हैं उनमें गुस्सा भी है जी. और है ना वो थोड़ी शाय भी है लोगों से बात करने के लिए या जी, किसी जी. से भी बात नहीं करती वो खुल के. जी. एज वो मुझसे भी खुल के बात नहीं करते तो आई एम बिट स्केयर्ड ऑफ दिस क्या थिंग. एज है बच्चे का? 5.5 year old. हाँ, 12.5. 5.5 year. हाँ. हाँ. सो कैसा है ना निशा, सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हर बच्चे का ब्रेन पैटर्न अलग होता है. राइट. सो फ्यू Yes. किड्स दे आर वेरी चूजी अबाउट टॉकिंग. वो हमेशा एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन ब्रेन का एक लोब हैंडल करता है एंड फीलिंग ऑफ इमोशन ब्रेन का दूसरा लोब हैंडल करता है. तो जो हम फील करते हैं उतना ही एक्सप्रेस करें ऐसा हर ब्रेन नहीं करता. कुछ लोग फील कम करते, एक्सप्रेस ज्यादा करते. कुछ लोग फील बहुत करते हैं लेकिन नहीं कर पाते उतना एक्सप्रेस. दैट्स हाउ दे आर बोर्न. तो हम सब हमेशा ये पहले बोलते हैं कि एक्सेप्ट द पर्सन फर्स्ट, कि तू जैसा है ना, इट्स एब्सोल्युटली ओके. दे कैन नॉट. अभी एक धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर की तरह रिएक्ट नहीं करेगा. उसका टेस्ट अलग है, धनिया पाउडर का टेस्ट अलग है. राइट. या नमक और चीनी दोनों अलग काम के लिए यूज होती है. राइट. सो पहले तो जैसा ही प्रॉपर्टी है, जैसा फ्लेवर है, ठीक है. अब इस फ्लेवर को कहाँ यूज कर सकते हैं.
तो उसको अगर हम लोग पहले एक्सेप्ट करें ना, तो उसको लगता है मेरे अंदर कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग बार बार उसको ये बता रहे कि वो तू जैसा कर रहा है ना वो गलत है, वो जैसा कर रहा है वो गलत नहीं है, दैट इज वन वे ऑफ लिविंग लाइफ ऑल्सो। बट जैसे हम उसको बोलते हैं दिस इज वन वे ऑफ लिविंग लाइफ, बट देयर आर अदर वेज, बिकॉज तेरा जो नेचर है ना, हम तो तुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन बाहर के लोग शायद तेरे साथ दोस्ती ना करे, तेरे को एक्सेप्ट ना करे, तेरे अंडर में काम ना करे, तेरे साथ काम ना करे। डू यू वांट टू लर्न द अदर वेज आल्सो? देन व्हेन देयर इज अ कोचिंग लाइक माय कोचिंग, जिसमें कोई बाहर का उसको बताता है ना, क्योंकि मम्मी बोलती है तो मम्मी का चालू हो जाता है, घर वालों का किचकिच शुरू हो जाता है। That's why मैं repeatedly आपको बोल रही हूँ, it is not about के I am only promoting my work. I know it works in this way only. क्योंकि टीचर का और कोच का ना एक स्थान होता है जहां से बच्चा सुनता है ना, तो उसको लगता है कि yes I can do that, I can start doing that. So ये तरीके से बच्चा धीरे धीरे ओपन अप होता है। वो जब अपने कमरे में बैठ के डांस करेगा या हमारे कोच के साथ अकेले इंटरेक्ट करेगा, ग्रुप में रहते हुए भी, वो धीरे धीरे ओपन अप होगा, उसको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, उसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा अपने ऊपर। एक दिन में अचानक से वो कॉन्फिडेंट पे चला गया, 1000 लोगों से बात करने लगा, ऐसा तो नहीं होगा। चंद्रांकित शर्मा जो हमारे सेलिब्रिटी कोच है, ही वाज द मोस्ट शाई बॉय व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। वो अपने लाइफ से बच्चों के साथ बात करते कि वो कितना शाई थे, वो कितना बात करने से लोगों से डरते थे। टुडे ही परफॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल। तो उनके लाइफ के बारे में जब बच्चा उनसे सीखेगा, उनसे सुनेगा, उनका कॉन्फिडेंस और उनका हम्बलनेस देखेगा। चंद्रांकित इज ब्यूटीफुल, उसका इतना हम्बलनेस है, साथ में इतना कॉन्फिडेंस है, बच्चों के साथ इतना प्यार से करते, तो बच्चा उनके जैसा बनना चाहता है कि अगर ये भैया ने कर दिखाया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उनके पास लाइव एग्जांपल आने लगते हैं, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज। सो यू कैन लीव योर फोन नंबर, आप अपना फोन नंबर जरूर छोड़ के जाइए निशा, and my team will get back to you in about the details, and then you can decide करना है कि नहीं। Okay, just I want to मतलब ask you, जैसे वो मुझे keep on telling me कि नहीं I can't share with you, you will hit me, you will scold me। जी। So why she keep on telling this? I don't understand। और अभी तो मैं उसको मारती भी नहीं हूँ, गुस्सा भी नहीं करती हूँ, कुछ अभी तो मारते नहीं हो मतलब कभी तो मारा है। पहले तो हाँ एक तो मतलब हुआ है वो चीजें बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है निशा, और उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। सो यू विल स्टे इन टच विथ मी थ्रू दिस कोचिंग, क्योंकि ये जो मैंने बोला मॉनसून मस्ती, इसमें साथ साथ में पेरेंट्स के साथ भी मेरा कोचिंग चालू रहता है। तो कोई चीज अगर लिख गया है और बच्चों का दिमाग बहुत ही नाजुक होता है, तो उसमें कुछ चीज बैठ जाती है। कई बार हम ऊंचे आवाज में भी बात करते ना, तो वो उस चीज को मारने की बात करते हैं। हमने डांटा है, लेकिन आप देखोगे वो बोलते हैं मम्मी ने मारा है, तो हम बोलते हैं अरे कहाँ मारा, हमने तो जोर से चिल्लाया सिर्फ, राइट? सो दे डोंट नो द टर्मिनोलॉजीज अ लॉट ऑफ टाइम and they understand how it works, so it takes some time, so I will train you into that gradually, don't worry। उसमें अपने आप को गिल्ट में मत लेके जाइए, it's all right, हम लोग उसको भी अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, don't worry about it। I was guilty of that कि क्या हो रहा है ये, so I was bit worried about it। don't worry, आपने अब तक जो देखा वो आपने बेस्ट किया। now as a team work, देखो हम लोग हर चीज लर्न करते हैं ना, बिजनेस लर्न करते हैं, बेकिंग कुकिंग लर्न करते हैं लाइफ में। अभी तो फेसबुक कैसे चलाना है वो लर्न करते हैं, इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है, वेबसाइट कैसे डिजाइन करना है, हर चीज लर्न करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, पेरेंटिंग, उसको लर्न करने में क्या शर्म है? And Akanksha has done our parenting workshop, she knows about it कि हम किस लेवल पे चीजों को लेके जा सकते हैं। There are many people who are right now there, so who have done our workshop, और उनका पूरा लाइफ का जो पैराडाइम शिफ्ट होता है अपने सोच में। जैसे सोच बदलती है ना, वो आपको लैंग्वेज अपने आप मिल जाएगा कि करना क्या है, राइट? सो दैट्स देयर। So thank you so much for being there, and it's been quite late, and Dr. Chandra Sudha is still there with us, and so many people are, कुछ लोग हैं छोड़ना ही नहीं चाहते लास्ट में, उनको बड़ा मजा आता है, तो मुझे भी मजा आता है। So bye, see you on next Saturday। Before that, a lot of people I'll see you from this Monday, because my relationship with you on a daily basis, 15 दिन साथ में गुजारते चलो, 2-2 घंटा। I will be there for 2 hours constantly, but actively मैं बात करूंगी आधा घंटा मैं, लेकिन constantly आपके बच्चों को मॉनिटर करती रहती हूँ। I keep on seeing them, I keep on noticing their nature and behavior, and accordingly I work on that, right? So let me see the chats।